زندہ کلام ہے، یہ ہم سب کو تازہ دم کرتا ہے. آمین. تو اسی کلام کو ہم اپنی زندگیوں میں لینے کو ہیں. تھوڑی دیر پہلے بھی گیت گایا جا رہا تھا، پاک روح سے بھر دے مجھے. اور شاید یہ پاک روح ہی گائیڈ کرتا ہے. بھائی کو نہیں معلوم کہ میں نے آج جو کلام شیئر کرنا ہے، جو خدا نے مجھے کلام دیا ہے، وہ پاک روح کا ہی ہے. اور دیکھیں گیت بھی وہی گائے جا رہے تھے جو پاک روح سے ریلیٹڈ تھے، تاکہ اس زمین کو تیار کیا جا رہا تھا کہ جب وہ بیج اس زمین پر گرے تو وہ 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے. آمین. اور میرا ایمان ہے کہ واقعی آج جو کلام شیئر کرنا ہے، کیونکہ عید پینتیکوست کا دن آنے کو ہے، تو ہم اسی حوالے سے کلام کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، جانیں گے کہ کلام ہمیں پاک روح کے متعلق کیا بتاتا ہے. بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن ہر ایک کی کہہ لیں کہ ریسرچ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، الفاظ تھوڑے ڈفرینٹ ہوں گے، آیات تھوڑی ڈفرینٹ ہوں گی، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہوتا ہے. آمین. روح القدس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس تثلیث پر مسیحی ایمان رکھتے ہیں، اس کا تیسرا بڑا اقنوم ہے. تینوں اقانیم میں سے یہ تیسرا بڑا اقنوم ہے روح القدس. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح. اس کے لیے جو لفظ یوز کیا گیا ہے وہ ہے پروتوکوس، جس کا مطلب ہے مددگار، عزیز، اچھا دوست. اور ایک اور لفظ ہے پروسکونیٹوس، جس کا مطلب ہے ایسا عزیز جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہو. تو روح القدس کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. آمین. اردو ترجمے بھی روح القدس کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. پرانی عہد نامہ میں اگر ہم دیکھیں، زبور، یسایہ، خروج، پیدائش، قضات، ان سب میں بھی روح القدس کو کئی ناموں سے پکارا گیا ہے، جیسے پاک روح، روح قدس، روح اللہ، خدا کی روح، خداوند کی روح وغیرہ استعمال ہوئے ہیں. اسی طرح سے نئے عہد نامہ میں بھی یوحنا، اعمال، ان کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر روح حق، یسوع کا روح استعمال ہوئے ہیں. لیکن ان سب کا مطلب ایک ہی ہے، اور وہ مطلب ہے مددگار، ہیلپر، جو ہمارا کیا ہے؟ مددگار ہے. روح القدس کے لیے بائبل مقدس میں علامتیں بھی استعمال ہوئی ہیں. جیسے یسوع مسیح بپتسمہ لے رہے تھے تو کیا ہوا تھا کہ آسمان سے کیا ہوا تھا؟ کبوتر نیچے آیا تھا، وہ پاک روح کی صورت میں تھا. ٹھیک ہے. ہوا، پھر آگ. جب آپ پڑھتے ہیں کہ 120 کی جماعت تھی اور وہاں پر کیا ہوا تھا، لوگوں نے کیا سنا؟ آگ سی پھٹتی ہوئی آوازیں. اسی طرح سے تیل جو ہے مسح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ سب پاک روح کی علامتیں ہیں. اور یہ جو علامتیں ہیں، یہ ہمیں روح القدس کے شخصی کردار کو سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں. بائبل میں پاک روح کی شخصیت کو تو بتدریج واضح طور پر دکھایا گیا ہے. اور جب ہم روح کے کاموں کا کتاب مقدس میں، اس کتاب میں جب مطالعہ کرتے ہیں، تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک شخصیت ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یعنی کہ روح القدس اس کتاب میں ایک شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ روح القدس کیا ہے؟ ایک شخصیت ہے. اس کے لیے ہی اور ہز استعمال ہوا ہے، اس کے لیے اٹ استعمال نہیں ہوا. کیونکہ ہی اور ہز کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک شخصیت کے لیے. تو روح القدس کیا ہے؟ ایک شخصیت ہے. کیونکہ تثلیث کا ایک اقنوم ہے، اور روح القدس جو ہے وہ ایک خاص
शख्सियत है। रूह कुदूस को एक मददगार कहा गया। अगर हम यूहन्ना 14 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत देखें, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। कुछ अरसा के लिए नहीं, कब तक के लिए? अब तक, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहे। यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो। दुनिया नहीं जानती, लेकिन कौन जानते हैं? हम जानते हैं, आप जानते हैं। लेकिन हमसे मुराद मसीही जानते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। साथ कौन रहता है? जो हमारे अंदर है और तुम्हारे अंदर होगा। रूह कुदूस अज़ल से है। अगर आप पैदाइश पहला बाब उसकी दूसरी आयत पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है कि जब जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं पर अंधेरा था, तो पानी की सतह पर क्या चीज जुम्बश कर रही थी? पाक रूह। यानी कि ये अज़ल से है। खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहा ना कि मैं जाता हूँ और बाप से दरखास्त करूंगा कि दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजे। लेकिन हमें यहाँ पर मिलता है कि पाक रूह तो अज़ल से है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह कलमा की सूरत में अज़ल से थे, इसी तरह पाक रूह भी अज़ल से है। कि जब जमीन पर कुछ ना था, वीरान और सुनसान थी, अंधेरा था, तो तब भी पानी की सतह पर पाक रूह क्या कर रही थी? जुम्बश। क्योंकि पाक रूह हर जगह है, हर जगह मौजूद है। रूह कुदूस ईमानदारों की जिंदगी में इनफरादी तौर पर काम करता है। और यहाँ पर हम सब कौन बैठे हुए हैं? कौन बैठे हुए हैं? ईमानदार, रास्तबाज। तो कलाम कहता है कि रूह कुदूस ईमानदारों की जिंदगी में इनफरादी तौर पर काम करता है। वो ईमानदारों के बदन में बसता है। हमारा बदन क्या है? पाक रूह का मक़दस है। यानी कि पाक रूह हमारे इन बदनों में बसता है। यीशु ही जिंदा खुदा का बेटा मसीह सच्चाई को हम पर जाहिर करता है। यीशु मसीह की हयात और खिदमत भी रूह कुदूस के कार फरमा है। यानी कि वो रूह कुदूस की कुदरत से हामला हुई। इसी तरह से रूह कुदूस के वसीला से ही, क्योंकि उनमें कुदरत थी, क्योंकि दुनिया का कुल इख्तियार उसके पास था और वो कुदरत उसके अंदर काम करती थी और उस वसीला से वो बीमारों को शिफा देते थे, वो मुर्दों को जिंदा करते थे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह अपने इन्हीं कामों की वजह से तमाम अंबियाओं, तमाम पैगंबरों से आला और अफजल है। आमीन। ईमानदारों के अंदर रूह कुदूस की गवाही है। जब एक ईमानदार ए अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है, तो ये खुदा का रूह ही है जो उसकी रूह के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि तुम उसके फर्जंद हो। आमीन। हम ईमान रखते हैं ना इस बात पर कि हम कौन हैं? हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो ये रूह कुदूस ही है जो ये हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अगर आप पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 8वीं से 10वीं आयत पढ़ें, मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, जस्ट बताऊंगी कि वहां पर ये तरह तरह की नेमतें बताई हुई हैं। हिकमत की, इल्मियत की, गैर ज़ुबानों की, गैर ज़ुबानों के तर्जमा की, नबूवत की, ये वो नेमतें हैं जो रूह कुदूस हमें इनाम में देता है। आमीन।
रूह कुदूस हमें परखता है, रूह कुदूस रहनुमाई करता है, रूह कुदूस हिदायत करता है, क्योंकि जो आपके साथ हर वक्त मौजूद है, हर वक्त आपके साथ रहता है, तो वही आपको गाइड करता है, वही आपको हिदायत करता है, वही आपकी रहनुमाई करता है। क्योंकि जो साथ होता है तो वही तो आपको वॉच आउट करता है, वही तो आपको देखता है। हमें जहां पर अगर अमाल की किताब हम देखें तो वहां पर मुर्दों में जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से वादा किया कि रूह कुदूस से बपतिस्मा पाकर कुव्वत हासिल करेंगे। अमाल पहला बाब उसकी 5वीं से 7वीं आयत में ईद पेंतीकोस्त के दिन का वाकया है। पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। देखिए, जब तूफान आने वाला होता है, आंधी आने वाली होती है, तो उससे पहले क्या होता है? बिल्कुल हब्स, खामोशी। तो हम क्या अंदाजा लगाते हैं? लगता है भी आंधी आने वाली है, लगता है भी तूफान आने वाला है, क्योंकि इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा सा हो जाता है कि हर चीज ऐसे लगता है जैसे थम सी गई हो। और लेकिन एकदम से फिर क्या होता है? तेज हवाएं, तेज आंधी, तेज तूफान आ जाता है। तो वहां पर भी ये कह रहे हैं कि ऐसे था जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूह कुदूस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। और ये 120 की जमात थी, क्योंकि बगैर रूह कुदूस के नज़ूल के, यानी कि उसके नाजिल हुए बगैर यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और जमीन की इंतहा तक कोई जा नहीं सकता था। वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और 120 की जमात में खुदा की हजूरी में ठहरे हुए थे। 10 दिन तक वो रो रहे थे, दुआ कर रहे थे। तो क्या हुआ कि रूह कुदूस ने उन कमजोरों को, उन नातवानाओं को क्या किया? उठा खड़ा किया। कैसे? क्या एक कमजोर और नातवा इंसान उठ के खड़ा हो सकता है जब तक कि उसको ताकत, जोर ना मिले? तो वो भी यही थे, वो कमजोर थे। हमें ताकतवर बनाता है, इसलिए आज जरूरत है कि जो कमजोर हैं, जो रूह कुदूस के तालिब हैं, जो रूह कुदूस के भूखे हैं, जो चाहते हैं कि पाक रूह से मैं भर जाऊं। गीत में तो हमने बहुत जोर से गाया, पाक रूह से भर दे मुझे। क्या आप वाकई उसके प्यासे हैं? क्या आप वाकई ही रूह कुदूस के भूखे हैं? क्या आप वाकई रूह कुदूस के तालिब हैं कि वो आपको अपनी मामूरी से, अपने जोर से, अपनी ताकत से भर दे? कौन कौन है जो पाक रूह का तालिब है या उसका भूखा है? सभी हैं। आमीन। तो आइए, क्योंकि लिखा है कि जब तक तुम्हें रूह का लिबास ना मिले ठहरे रहो। और वो कितने दिन तक ठहरे रहे? उन्होंने उस जोर को, उस ताकत को हासिल करने के लिए वो दुआ में लगे रहे, खुदा के हजूर ठहरे रहे। आमीन। क्योंकि वो रूह कुदूस के भूखे थे, उसके
प्यासे थे। आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं। जो रूह कुदस के भूखे और तालिब हैं और जो चाहते हैं कि वो आज हमें अपने